جی اختر نظامی صاحب، हाँ طیب مطالعہ ہو گیا؟ طیب صاحب، آپ کا جو بھیجا ہوا دیکھا میں، اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا چیز ہے میں اس میں؟ تو آپ کی کچھ بے اعتراض ایمانی نہیں. کا، آپ کی بے ایمانی کا اور آپ کی واہی تباہی کا، بربادی کا ثبوت خود تمہارے بابا نے، یار خان نعیمی نے پیش کیا ہے۔ ہاں پڑھیے، آپ کا لنترانی بکواس کرنے سے نہیں نہ ہوگا. آپ پڑھیے، عبارت پڑھیے کیا ہے. آپ نے عبارت کا کہا کہ حاصل خلاصہ ما حصل میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 96 پر لکھ رہے ہیں امیر معاویہ، ایک نظر کتاب ہے یار خان نعیمی کی۔ جی یہ لکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے کون ملیں گے؟ یا تو روافظ، یا پھر وہ لوگ جو روافظ کی صحبت میں رہ کر کے اپنے ایمان عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں. اچھا عبارت پڑھیں آپ کے سامنے؟ ہاں چلو عبارت بھی پڑھ دیں گے، کیا بات ہے۔ چلیے ہم پڑھیے. سوچ رہے تھے کہ ما حصل خلاصے سے جو ہے کام چلا لیں، آپ کے نہیں نے آپ کے تعویلات اور آپ کے جو مفہوم مقصد لیتے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں. اب سنیں میری بات، اب پڑھ رہا ہوں نا میں۔ یہ اس کتاب کا، یعنی کتاب کا نام ہے امیر معاویہ پر ایک نظر، اور اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 96 ہے جی. اس میں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے کون ملیں گے؟ یا رافضی یا سنی جو روافظ کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب دیکھ کر اپنے ایمان کی دولت برباد کر چکے۔ ہاں سمجھ میں آ گیا؟ ہاں پڑھے آگے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سنی ہم لوگ ہیں، ہاں اپنے متعلق آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ جی جی. یہاں سنیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ سنیوں کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے روافظ کی صحبت میں رہ کر اور روافظ کی کتب دیکھ کر اپنی ایمان کی دولت برباد کر لی۔ تو تمہیں تو اس کتاب میں یار خان نعیمی نے روافظ کا صحبت یافتہ بتا دیا اور روافظ کی صحبت پا کر ایمان کی دولت کو برباد کرنے والا بتا دیا۔ جی تو جی. پھر تم جو ہے اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار کس طرح سے ہو بھائی؟ یعنی بریلوی مسلک کو اہل سنت و جماعت آپ نہیں سمجھتے، مطلب کیا ہے؟ نہیں، اہل سنت و جماعت نہیں سمجھتے؟ نہیں بھائی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کتاب میں دیکھیے، سنیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے۔ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، ضابطہ مفتی صاحب بول رہے ہیں، بیچ میں یہ آپ مسئلہ نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے وہ نہیں ہے۔ دیکھیے امیر معاویہ پر ایک نظر سن لیجئے، ان کا کلام میں سن لیا، جواب دیا میں۔ امیر معاویہ پر ایک نظر، آپ کہیں کہ ہم کیا سمجھتے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ تھوڑی ہے، وہ بول رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں، مسئلہ ہے وہ تو ظاہر کر دیے نا، دعویٰ کیا ہے کہ سنی یہ تو ظاہر کر دیے کہ ہم بریلیوں کو سنی جماعت والے نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، ابھی مسئلہ تمہارے گھر کا ہے، گھر کے دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کیا ملیں گے؟ رافضی یا سنی؟ کون سنی کی بات کر رہے ہیں؟ جو روافظ کی صحبت میں رہ کر ان کی کتب دیکھ کر اپنی ایمان کی دولت کو برباد کر چکے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ سنی لوگ اپنی ایمان کی برباد کر لیے، تو اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں وہ مسئلہ پھنسنے والی چیز نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ بھی غلط جی۔ اس میں بالکل صاف طور پر لکھے ہوئے ہیں عزیز صاحب، اور آپ دونوں لائن پہ رہے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کو سنی کہنے سے انکار کر رہا ہے قاری مفتی طیب صاحب نے۔ اپنا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر سے آپ کیا ثابت ہیں وہ مسئلہ ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح دیکھیے میری بات، یہ دیکھیں اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے جو روافظ کی صحبت میں یا ان کی کتب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والا کون ملیں گے؟ یہ رافضی یا سنی؟ اب یہ مسئلہ ہے، کون سنی کی بات کر رہے ہیں؟ جو روافظ کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتب دیکھ کر اپنی ایمان کی دولت برباد کر چکے، سمجھے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ صحابی کو برا بھلا کہنے والا، صحابی کو برا بھلا جو کہے وہ سنت جماعت میں رہے گا، کافر ہوگا، یہ مسلمان رہے گا؟ پھر بھی سنی ہے تمہارے یہاں؟
नहीं, वो तो वो ईमान बर्बाद कर चुके, बर्बाद खत्म हो गए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती अहमद यार खान साहब आगे दुआया जुमला कहें, रब तबारक व तआला हर मुसलमान का ईमान इस जमाने की हवाओं से महफूज रखे। बिल्कुल सही कहा, सही है ना? आप भी सही कह रहे हो, लेकिन आपके घर में जब फतावा रशीदिया में पढ़ता हूँ, उधर मत जाओ, उधर हमारी किताब, तुम्हारी किताब से तुम्हारे घर को आगे तफसीर करे वो मलून है। ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है। वो अपने इस कबीरा गुनाह के सबब सुन्नत जमात से खारिज ना होगा। मेरी बात सुनोगे? मैं किताब में मौजूद अल्फाज उनके बिहाफ पर अब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी, सुनना मेरी बात। आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? अरे भाई मुझे ये बताइए अख्तर निजामी साहब, क्या किसी सहाबी की वफात पर खुशी का इजहार करना या खुशी के इजहार में कोई रस्म अडोप्ट करना, ये बताओ गुस्ताखी है कि नहीं है? अभी मौजू कहाँ ले जा रहे हो? अरे मौजू यही है। क्या कहा है यार खान नईमी ने? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा दावा ये है कि जितने भी बरेलवी हैं वो सब के सब रवाफिज के सोहबत याफ्ता हैं। और मैं आपने दावा किया, सारी तैयब साहब से बात होगी, इन्होंने बड़ी दावा कर दिया है। हम बड़ी दावा नहीं, बड़ा दावा नहीं, सुनो दावा मुदक्कर है, दावा मुअन्नस नहीं है। सुन लो अली असगर साहब, आप बखलाए नहीं, मेरी बात सुने। मुफ्ती सैयद देवबंदी ने ये दावा किया कि बरेलवी मसलक वाले अहले सुन्नत व जमात वाले नहीं हैं, बल्कि रवाफिज हैं कह करके माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही आपके अकाबिरीन भी यही कहे हैं और फतवा भी दिए हैं। देवबंदियों के दारुल इफ्ता मज़ाहिब ने बेनसीब लिखा है, अगर कोई मैं संजीदा होकर के आपकी बात सुनता हूँ और आप मेरी बात सवाल का जवाब दो। अगर कोई शख्स सुनिए है कि नहीं है? सुनोगे या नहीं? सहाबी रसूल की वफात पर खुशी मनाना, सहाबी रसूल को कोई अमल करना मनाना, रसूल की वफात सुनो उसमें भी इंशाल्लाह कहेंगे, बताइए। पहले तुमने के बरेलवी मसलक को अहले सुन्नत व जमात नहीं मानते हो, इसका दावा कर दिया। तेरा एक एक हर्फ जो है सादिक और सच्चा साबित होगा। सुन लो नहीं, वफात पर खुशी मनाना मुफ्ती सैयद साहब है कि नहीं है? मुफ्ती देवबंद सैयद साहब जो शियों की इजाज़त करता है और शियों की असल में बरेलवियों ने ये ले रखी है, ये बताइए यार है कि नहीं है? जो हमारा कुछ कर दिया है क्या पता नहीं। तो मेरी बात सुनो, तुमने दावा कर दिया तो मैं पढ़ रहा हूँ, यही आपके मुताबिक आपके अकाबिरीन भी लिखे हैं। भाग रहा हो तुम। अरे पहले अपनी किताब पर तो गुफ्तगू कर लो, मुझे ये बताओ। सुनो, वही बात दे रहा हूँ मैं, तुम्हारे सीने में चढ़ के जवाब देता हूँ ना। मेरी आदत क्या है, देवबंद के और रायवंत के सीने में चढ़ के जवाब तुम्हारी है अपनी किताब पर तुम्हारे घर से ही जवाब दे रहा हूँ। खुशी मनाना, सुनो यार, कहना क्या चाह रहे हैं? अजीब तमाशा है तुम्हारे, सुनते भी नहीं। तमाशा तो तुम्हारा बनेगा अभी थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में वो देखेगा। इस सवाल का जवाब इश्क है, आगे आगे देख क्या होता है। है तो ये उसकी बड़ी गुमराही है कि ये फतवा दिया है देवबंदी का मुतब्बिका किताब। साहब खामोश रहे, सलमान देवबंदी शुमारा नंबर 41 देवबंदी मौलवी मंजूर अहमद साहब लिखते हैं, इनको हम अहले सुन्नत व जमात अहले सुन्नत कहाँ भी गुनाह है, मुजल्ला सफदर शुमारा नंबर 40 सफ़ा नंबर 27। और देवबंदी मौलवी यूसुफ लोधियानी हवाले से एक देवबंदी लिखता है, बल्कि अहले सुन्नत
करार देने को शरीफ गुमराही करार दिया है। और आपके देवबंद वाले, आपके अकादरी वाले। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ देवबंदियों के काजी मजहर साहब लिखते हैं देवबंदी और बरेलवी की निस्बतें देवबंद और बरेलवी की दीनी मदारिस के बिना पर हैं, जो मजहब अहले सुन्नत व जमात के दो मुख्तलिफ मकतबे फिक्र हैं। इत्तेहाद फितना सफा नंबर 11-12। कौन सी किताब? इत्तेहाद फितना। जरा भेज दें, मेरे पर्सनल भेजा इंशाअल्लाह अजीज भेज रहा हूँ मैं। हवाला मेरी जिम्मेदारी है। फिर इसने अपने अकादरीन में कुछ नाम गिनवाए। किताब मैंने आपके पर्सनल में भेजी है, उसको मैं जो बोलूंगा वो पहले भेज दूंगा आपको, ठीक है? और आप भी मुझे पर्सनल भेजें, पर्सनल मुझे जी जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। मैं दूंगा नहीं, मैंने भेज दिया, आप दें। मैं अभी निकालूंगा तब दूंगा। अभी जरूर होने के बाद आपको मैं जितने हवाला दूंगा, अगर मुझसे मुतालबा कर सकते हैं। किताब पढ़ नहीं रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल मेरे हाथ में तुम्हारी किताब से पढ़ के बोल रहे हो। तुम्हारी किताब मैं फोन करके बात कर रहा हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर झूठ बोलूंगा तो आप रिकॉर्ड। मैंने भेज दिया, हवाला पहुंच गया तुम्हारे पास। मेरे पास मैं देखो डबल निशान बता रहा है, डबल निशान, झूठ मत बोलो, डबल निशान बता रहा है। देखो पर्सनल व्हाट्सएप खोलो, मैंने भेज दिया, डबल निशान बता रहा है। तुम्हारे पर्सनल पे किताब स्कैन पहुंच चुकी है और तुम देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके इसका जवाब दे रहा हूँ, अभी तक जवाब नहीं। पहले हवाला भेजो। तुमको मुफ्ती तैयब कासिम साहब ने कहा था, तुमने कहा कि हवाला भेजो। तो मेरी बात सुन, आपको फोटो निकाल के भेज। अरे मेरी बात सुन यार, तुमने जब पहले फोन किया था मुफ्ती साहब ने, तुमने कहा कि हवाला भेजो। जैसे हवाला भेजा, तुमने कहा कि मैं फोन करता हूँ 10 मिनट के बाद। तुम्हारी आदत रही है, जब भी तुमको कोई मौजूद पेश किया था मैं क्या मुकम्मल वक्त में नहीं रहता। बहुत दिनों की बात हो रही है। जब तुम्हारे पर्सनल पे हवाला भेज दिया है पहले, फिर तुम फोन करके भाग गए। अब तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुमसे मुतालबा कर, तुम किताब क्यों नहीं भेज रहे? मैं क्लास में था, भाग गया कर। अजीब तमाशा बना के रखते हो। किताब दे रहा हूँ, सुन लो पहले। नहीं सुनने पहले पहले मुझे साहब सुनना नहीं उसकी बात। पहले किताब पहले स्क्रीन भेजा, स्क्रीन भेज पहले। हमारा भी उसूल बनाया है, हवाला भेज दे रहा हूँ। हाँ देवबंदियों की पहले भेज दे रहा हूँ, पहले भेज नहीं सुनो नहीं क्या? तूने पहले हवाला मांग लिया, पहले हाँ पहले तू हवाला मांग लिया और अभी बोल रहा है भेज दूंगा आखिर में। नहीं मैं बीच में नहीं मांगा, तुमने मांगा, बात कर रहे हो। तुमने पहले मांगा, पहले मैं दिया, तुम कर रहे हो। चल हवाला भेज, जल्दी हवाला भेज। तू झूठ बोलता है। मुफ्ती साहब ये अपनी किताब से पढ़ता है, ये हमारी किताब इस पास नहीं, अपनी किताब से पढ़ता है। नहीं तुम्हारी इबारत पढ़ रहा हूँ। देवबंद या जमात मिलने के सारे आसमानी रजाकानी सफा नंबर 119 कज़्ज़ाब है, तुम झूठ बोल रहा। मैं फौरन हवाला भेज रहा हूँ। अब देवबंद मौलवी हाफिज मक्की साहब एक मकतूब मैंने कहा कार के नहीं देगा, मर जाएगा, नहीं देगा, नहीं देगा, मर जाएगा, नहीं देगा। मैंने कहा मर जाएगा, हवाला नहीं भेजेगा, इस तरह फरमाया हो। अलबत्ता हजरात अकादरी नजर आता है कि समझते हैं अपने अकादरी में से कुछ उस्मानी, यूसुफ लोधानी, तहफ़्फ़ुज़ 594 में लिखा है। तो मालूम हुआ 116 यूसुफ लोधानी कारी मजहर हुसैन के फतवे से देवबंदी अकादमी क्या हुआ?
उनकी गुमराही की तावील नहीं होता पढ़ के भेज रहा है, ये बता रहा है। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ कि जाल नहीं है, मैं नहीं पढ़ा, आपके घर की पढ़ रहा हूँ। तू जाल हक पढ़ के बता दे, पिटाई करता हूँ तो जाल हक पढ़ के बताते। मैं तुम्हारे हर मौजू में तुम्हारे करोगे में रहूंगा तो बात कर लेना। गुमराह साबित हुए और कारी तैयब तो ये मुफ्ती तैयब तो क्या हो गया, ये काफिर हो गया खुद के फतवे से, क्योंकि देवबंदियों के नजदीक शरीह में ताबील नहीं होती है। जालिम भी हुए, बताएं शरीफ गुमराह गुनहगार मानकर सारे देवबंदी मुसलमान नहीं हो रहे हैं, वो सब भाग गया। लाहौल वाला कुतिल्ला बिल्लाही अली असगर को जबड़े उखाड़ देता हूँ, यही चिल्लाएगा ना। बात हो रही दरमियान में मैं अपने आंखों से देखूंगा, अभी मैं बेवकूफ बना रहा। सुन लो, आवाम को नहीं, तुम लोग आवाम को बेवकूफ बनाते हो यार। तुम्हारे घर में मैं साबित कर दिया अहले सुन्नत व जमात है। देवबंदी की काजी मजहर साहब भी नहीं सुनिए, और इलियास घुमन भी इकरार किया है। नहीं भेजा, पढ़ करके पब्लिक को गुमराह कर रहा है। इतने हवाला लगा दूंगा कि हवालात में बंद हो जाओगे कसम से। मुफ्ती साहब उसने हवाला भेज दूं? हाँ अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अब मैं बोल दिया हवाला भेजूं? नहीं फोन मत काटो, अभी मैं सुनो बता रहा हूँ, फोन काट के भेजूं? तुमने दोनों कुत्ते की तरह भौंकने लगे यार तुम लोग। अब खामोश के साथ सुनो, अब मुझे बोलने दो। उन्होंने कहा कि तैयब साहब ने क्या कहा कि बरेलवी मसलक वाले जमात नहीं है। मैं खुद कहा कि तैयब ने खुद कहा, दावा किया। किताब का नाम क्या है? कौन? किताब का नाम क्या है? मैंने आपको तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत सफ़ा नंबर 594 निकालो। मुसन्निफ इलियास घुमन के पीर अब्दुल हफीज मक्की साहब। अच्छा, ये सफ़ा नंबर 594। जिल्द इसका ही नहीं, जिल्द है झूठ मत बोल, नहीं है जिल्द है, झूठ बोल कितना झूठ, और झूठ बोल, लाहौल वाला कोती जिल्द है ही नहीं। अक़ाइद अहले सुन्नत में सफ़ा नंबर 140 में भी देखोगे और 594 में भी देखिएगा। जमात का आसमानी, मैं फौरन ही स्कैन डाल दे रहा हूँ, अगर नहीं डालूंगा जाल हक में है ना, जाल हक में नहीं, जाल हक में नहीं पढ़ रहा हूँ। आपके घर का बहुत है, आपके घर की किताब को बहुत मुताला किया। फतवा रज़वी से बोल रहे हो जी? फतवा रज़वी से बोल रहे हो? फतवा रज़विया में तो ये सब मौजूद ही नहीं है। कैसे इत्तेमाद करें तुम्हारी बात पर जब हवाला नहीं मिलेगा? गंद तो अशरफ अली मेन टारगेट का वहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कैसे तुम्हारी बात पर इत्तेमाद करूँ जब तुम भी नहीं भेजोगे पर्सनल? इलियास घुमन कब पैदा हुआ? आला हज़रत के जमाना में था ये। तुम्हारी बात पर मैं कैसे इत्तेमाद करूँ करने वाला? नहीं, तुम अभी घुसा दोगे ना उसके अंदर, घुसा दोगे ना? घुसा देंगे तो तुम्हारी बात पर इत्तेमाद कैसे करूँ मैं? कैसे इत्तेमाद? तुम हवाला नहीं भेजोगे तुम? मैं हवाला भेज दे रहा हूँ ना, फौरन भेज दे रहा हूँ, और जब मेरे सामने होना अलग बात है ना। क्यों नहीं भेजे? मैं अभी फौरन आपको भेज दे रहा हूँ। नहीं, वो भेज दोगे फोन काटने के बाद, तो मैं जवाब किस तरह काटने के बाद ही भेजूंगा ना। हाँ, तो फिर किस तरह जवाब दूं तुम्हारे को मैं, जब किताब पर्सनल में नहीं आवे तो किस तरह जवाब दूं? तो आप अपने किताबों का खुद मुताला नहीं करते, की तरफ उंगुश्त नुमाई करते हो। हमारी किताब से हमारी जवाब नहीं आता है, तुम लोग सवाल लेके आते हो, जवाब तुम्हारे घर से किताब जवाब देता हूँ, तुम लोग बहानाबाजी करने लगते हो कि तुमने जवाब दिया ना, तुमने जवाब दिया ना, तुमने जवाब दिया ना। कहाँ मैं जवाब दे दिया? हाँ तो चलो साबित भी कर दिया, अहले सुन्नत व जमात मानते हैं आपके अकाबिरी। तुमने जवाब ये दिया कि हमारे अकाबिर हमारे उलमा ने तुमको अहले सुन्नत कहा है, बराबर? ठीक है, बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब तो मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा हकीमुल उम्मत तुमको बेईमान कह रहा है तो तुम्हारा कुफ्र हमारे अकाबिर के अहले सुन्नत रब्बिल आलमीन झूठ बोल रहे हो ना। बेईमान कहाँ कह रहा है? क्या ईमान की दौलत बर्बाद के लिए क्या है? जो में लफ्ज जो है ना, बाज़ी लोग हर आले सुन्नत व जमात नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो रवाफिज की सोहबत, जो लोग रवाफिज की सोहबत में रहकर
हाँ, जो से कौन, कुछ लोग हैं, कुछ सुन्नी भटक जाते हैं। कौन जलालुद्दीन है, नूर हसन है, अली खान है, जैसे तुम भटके हुए हो, जमशेद है, जैसे तुम भटके हुए हो, जैसे हम तुम्हारे बाप दादा सुन्नी था। अच्छा, मतलब यहाँ अली असगर साहब, अली असगर साहब, पहले तुम वल्ला बताओ, तुम्हारे बाप दादा सुन्नी था या नहीं? हाँ, बता रहा हूँ, जवाब दूं? जवाब दीजिए। तुम्हारे दादा सुन्नी ने कहा यहाँ सुन्नी से मुराद तुम लोग जो भटके हुए हो, यानी तुम्हारी किताब में तुम्हारा अहमद यार खान ने जो सुन्नी लिखा है, इससे मुराद देवबंदी है। उससे मुराद वो नहीं, वो राजी और सुन्नी लोग मरते हैं। सुन्नी लोग हम लोग थोड़े करते, तुम लोग तो काफी को नहीं यार, तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो, तुम्हारे कुफ्र आया है। यहाँ जो सुन्नी कहा है, तुम्हें कहा है ना, तुम्हारे बाप दादा सुन्नी जो थे वो लोग कुछ सोहबत में रह करके भटक गए जिसे, और तुम जैसा तुम्हारे जैसा औलाद पैदा करके लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब मेरे बाप दादा देवबंदी थे, तो यहाँ तुम्हारी किताब में जो नहीं था, वो लोग दादा लोग, तुम्हारे बाप से तहकीक करो ना, वल्लाह मैं कहता हूँ सुन्नी ही रहेंगे। तो तो हमारे वालिद मोहतरम जो है ये सुन्नी थे, हमारे दादा भी सुन्नी थे, है ना, ये देवबंदी थे। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे वालिद साहब के बारे में? मैं बोल रहा हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ, सुन्नी देवबंदी थे वो लोग। तो यहाँ जो देवबंदी नहीं था, तुम्हारा दादा के वक्त तो खत्म ही हो गया होगा, देवबंदी है ही नहीं। चलो ठीक है, तो तुम इल्जाम दे रहे हो हमारे वालिद के मुतालिक वो सुन्नी नहीं थे। तुम्हारी बात अगर मोतबर है, तो फिर मैं अगर कहूँगा तुम्हारा बाप दादा काफिर थे, अबू जहल अबू लहब, तो मेरी बात तुम्हारे लिए मोतबर है? हो सकता है हमारे परदादा हो सकता है काफिर हो, मुझे क्या मालूम है। तो गुमान पर किसी को फतवा लगा सकते हैं कुफ्र का? गुमान पर मैं 100% ऐसे कह सकता हूँ कि आज से देवबंद कायम नहीं हुआ था, उससे पहले सब सुन्नी थे, बाद में सब मेरे वालिद मालिक के मुताबिक तुम बात कर रहे हो, उससे पहले की बात नहीं कर रहे हो। तुम्हारा दादा परदादा लकड़ दादा सब सुन्नी थे, पहले सुन्नी थे। तो हमारे दादा को मैंने देखा, मैं दादा को भी देखा हूँ, वालिद साहब भी, सबको। बहरहाल मौजूद से बाटको नहीं, तुम खुद बोल रहे हो, भाग रहा है। मैं मुफ्ती साहब इसने तस्लीम कर लिया, यहाँ जो सुन्नी लिखा है देवबंदी के मुताबिक दंदाने शिकन जवाब दिया हूँ मैं, और आपको इसका नाम भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। दंदाने शिकन, जी। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो कुछ मुंह खट्टे कर दिया। दंदान कहाँ है? अब मुंह में है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, खट्टे कर दिए। खामोश रहो यार। तो यहाँ पे तुमने कहा कि यहाँ सुन्नी से मुराद तुम्हारे देवबंदी बाप दादा है, बराबर? तो पता ही चला यहाँ सुन्नी लफ्ज देवबंदी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारे लिए है तो फिर तुम बेईमान हो और मेरे माँ बाप के गुस्ताख हो। और अगर यहाँ माशाल्लाह इधर उधर की बातें ना करें, मैं लंतरानी बात करने वाले नहीं हूँ। आप मेरी तरफ जानते हैं, मैं आलिमाना अंदाज और इल्मी तौर पर बात करता हूँ। तुम मुफ्ती हो ना? तुम मुफ्ती हो ना? सुनो, तुम मुफ्ती हो ना? मैं हवाला दूं? अरे तुम मुफ्ती हो ना? तुम मुफ्ती हो ना? आपके लिए मैं मुहद्दिस भी हूँ, हदीस भी पढ़ाऊंगा आपको, और अख्तर निजामी आपके लिए, आपके देवबंद वाले को परेशान जी। अरे सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मुफ्ती हो तो किस इदारे से तुम इफ्ता किया, बताओ ना तुम। सुनो इधर एग्जाम ना लो, इम्तिहान ना लो, समझे? अरे मैं हाफिज कुरान में एग्जाम लूंगा, मैं हाफिज कुरान, तुम मुफ्ती हो यार? अरे एग्जाम पूछ रहा हूँ। तुम कहते हो देवबंद के मुनाजिर हैं, और उसके सनद के तौर पर कौन एक छठे हुए मौलवी और पता नहीं किसकी वॉइस को सुना रहे थे मुझे। अरे मेरी बात सुन, क्या पूछ रहा हूं, तुम नहीं करते हो, आगे सुन्नत व जमात को रोकने की, तान करने की कोशिश करते हो, शर्म आती है। अख्तर निजामी, तुम भटक रहे हो मौजू से, मैं तुमको क्या पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो तुम इल्मी गुफ्तगू करते हो और तुम मुफ्ती हो, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ हाफिज कुरान होकर के, मैं मुनाजिर कहलाते हो ना यार। मुनाजिर का मेरे पास ये वीडियो भेजा था, और कौन मौलवी का कहा हुआ, कौन मौलवी तुमको मुनाजिर कहा है? ये मुफ्ती मौलवी कहा है? हाँ, मुदस्सिर रजा, तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर रजा। झूठ बोलते हो यार, लानत अल्लाह मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, झूठ बोलते हो यार। देवबंदी धर्म तो झूठ में ही टिका हुआ है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। अगर मैं जवाब दे रहा हूँ तो तुम झूठा बोलना, अगर मैं जवाब दे रहा हूँ तो करने के लिए, अरे जब जवाब दे रहा हूँ फिर झूठा कैसे कर सकते हो? मेरा जवाब ये है, सुनो यार, मेरा जवाब, मैं मुनाजिर कहता है, बताओ तो। जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने हमें फोन करके कहा, अली असगर तुमसे मैं आमने सामने मुनाजरा करूंगा।
कौन कह रहा है? तो वो चैनल में ये देवबंदी खजर में ये वॉइस पड़ी हुई है, वो कहा मैं तुमसे मुनाजरा आमने सामने करूंगा, ठीक है। तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि तुम्हारे मुंबई कौन गांव से तुम्हारे मस्जिद की कमेटी वालों ने मशवरा करके मुझे फोन किया एक आदमी के जरिए से, जिसके गवाही बहुत सारे हैं, उसने फोन किया था कि तुम मुफ्ती मोतीउर रहमान से मुनाजरा करोगे आमने सामने। मैंने बोला मैं चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन मेरी शर्त है जो तुम्हारा मुनाजिर होगा पहले मुझे फोन में बात कराओ उससे कि मेरे नजदीक बात करने के लायक है या नहीं। तो मैंने मुफ्ती मुदस्सिर को कहा था कि क्या तुम्हारा मुफ्ती ये मोतीउर रहमान मर गया, शमशान घाट में चला गया? जब उसने चैलेंज दिया है, मैंने कबूल कर लिया है, अब उससे मुनाजरा तय है, फिर तुम क्यों बीच में आ रहे हो? नूर हसन आया, वो भी कहा कि तुमसे आमने सामने मुनाजरा करूंगा। पूछ लो, दोनों से पूछ लो, तुम मैं झूठ बोल रहा हूँ। इधर उधर की बात ना करें आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, समझे? तुम जवाब दे रहा हूँ, मुझे पर्सनल में बताओ, वल्लाह मुझे जो भेजे हो कौन छटे हुए मौलवी, एक नंबर के बदमाश मौलवी, जिसको सही तौर पर उर्दू गुफ्तगू करने का अंदाज नहीं है, तो वो बोल रहा है तुमको आदि असगर हमारे नुमाइंदे हैं देवबंद के और मुनाजिर हैं का सनद के तौर पर तूने पेश किया, वो कौन मौलवी है? सिर्फ नाम बताओ, वहीं पहुंच के उससे जूते लगाऊंगा, समझे? अच्छा, तो मुफ्ती मुदस्सिर रजा तुम्हारा पता हुआ है? सिर्फ नाम बताओ तो। मुफ्ती मुदस्सिर रजा। अरे यार, मुफ्ती मुदस्सिर रजा का वाइफ नहीं है वो कौन मुफ्ती है तुम्हारा? कौन मुनाजिर है जो आपको मुनाजिर करके दलील के तौर पर, सनद के तौर पर पेश कर रहा है? वही जब तुम्हारे घर से मैं मुनाजिर साबित हूँ तो हमारे घर के दलील तुम्हारे नजदीक क्या है? तुमने भेजा मुझे एक पर्सन ने वाइस अपनी वीडियो भेजा, मैं सुना भी, बहुत हंसी आई मुझे। अब मैं कहा कि मैं साल भर से इनसे बात नहीं हुई मुझे। अच्छा, उसके मुतालिक कह रहे हो? हाँ। तो ये जो वो वीडियो जवाब दे रहा हूँ, वो हमारा मुनाजिर है और इससे मुनाजरा किया है तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने। कौन मुनाजिर है? कौन मुनाजिर है वो? मुफ्ती मुजाहिद। मुफ्ती मुजाहिद पाकिस्तान के होंगे, उनका ऐलान है, बताइए ना। उनका ऐलान है। नहीं, उनका ऐलान है। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? तुम्हारा मुफ्ती मुदस्सिर रजा से पूछो कहाँ के हैं वो, उसने मुनाजरा किया है? मुझे बताइए ना, डरिए नहीं, मैं नहीं। मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने उससे मुनाजरा किया है। मेरी बात सुनना। साहिर रजा ने उससे मुनाजरा किया है मुफ्ती मुजाहिद से, ठीक है। और तुम्हारा ये मुफ्ती डॉक्टर, ये क्या उस नाम है, डॉक्टर नईमी, मारूफ मिसबाही नईमी ने मुनाजरा किया है बाकायदा व्हाट्सएप के अंदर, हिफ्जुल ईमान पर मुनाजरा किया है। और तुम बोलो नहीं छटे हुए हैं। तुम्हारा बड़ा मुनाजिर, अरे तुम्हारा बड़ा मुनाजिर बताएं आप, देवबंद के मुनाजिर है मुफ्ती मुजाहिद, वो कहाँ के हैं? डरिए नहीं, बता दे। तुम नहीं जानते? सिर्फ जगह बताने में क्या है यार? तुम पूछ रहे हो, तुम जानते हो नहीं जानते? बताओ। नहीं जानता। अभी तुमने एक बात कही, ये पर्सनल तुमने हवाला भेजा है, बोले छटे हुए हैं। मुजाहिद बहुत नाम के हो सकते हैं, आपके मुनाजिर कहलाते हैं, तो आप सनद दिया है, तो वो सनद देने वाले को एरिया जानूंगा, कौन छटा हुआ मौलवी है, पहले पहचानूंगा तब उससे गुफ्तगू करूंगा। जवाब नहीं लोगे? ढोलाई करूंगा। जवाब नहीं लोगे? नहीं, उसको बताएं पहले, तो जवाब देना हो ना, तुम सुनो ना खामोशी से। मौजू से इधर उधर भटक के कहां से कहां की बात, मैं वही बोल रहा हूं ना, खामोश रहो ना। तुम लोग सहाबे कराम पर फतवा लगाते हो, फतवा लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। काबिरीन की किताब पढ़कर तौबा करना चाहिए। वल्लाह बताता हूँ, भाग मत। सुन, अब मेरी बात सुन। तुमने बोला कि छठे हुए इंसान हैं, तुम्हारा जमशेद रजा ने मौलाना अशफाक बात कर रहा है, वो अपने लंतरानी मत हाको, अपने कुफरिया तौबा की बात करो यार। तुम्हारे घर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह में साबित कर दिया अहले सुन्नत व जमात हम लोगों को, और तुम्हारे अकाबिरीन मान करके लिख करके मरघट में मिल भी गए, और जो मुखालिफत किए उसको बेदीनी और गुमराही और काफिर और बददीनी साबित उनके कर दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इमाम बुखारी पर भी तुम लोग शिर्क का फतवा लगाते हो, तो बुखारी पढ़ना छोड़ दो यार। मैं पढ़ूं? लिखते हैं सही बुखारी की इस रिवायत पर एतमाद कीजिए। इमाम बुखारी ने ये बात फसलुल कौम में रिवायत की है, उसको ज़ाहिरी मजमून क्या है, शिर्क है कहा करते हैं। मुहद्दिसीन पर शिर्क का फतवा, नबियों पर और शिर्क का फतवा सहाबा पर, तमाम शिर्क मुश्रिक कहने वाले
कबीरा गुनाह के मुर्तकब है, लेकिन सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा करके मेरे पास जवाब है। फटावा रशीदिया में बस ये शिर्क जो उनसे सरजद हुई, किससे? हजरत आदम और हव्वा के बारे में लिखते हैं, बस ये शिर्क जो उनसे सरजद हुआ है ये शिर्क फी तस्विया है। फटा हुआ रशीदिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 192 माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तालीफात रशीदिया सफा नंबर 62 में। खालिद महमूद तो और एक डेग आगे आकर के कहा कि इमाम बुखारी उससे भी बढ़ करके अपने आप को गुमान कर रहा था। इमाम बुखारी ने ये फसलुस सौम में रिवायत की है, उसका जाहिरी मजमून शिर्क है। मुताले बरूजियत जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 108 में लिखा है। अब जाहिर है कि सही बुखारी की इस हदीस में सरीह शिर्क की तालीम है। मुताले बरूजियत जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 181। सामीन किराम, अब जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर शिर्क का फतवा लगा सकते हैं, जिनको बुखारी शरीफ में भी शिर्क की तालीम नजर आती है, वो हम सुन्नियों पर शिर्क का फतवा लगा भी दे तो क्या बड़ी बात है? धस जाएगा। इब्न अब्दुल वहाब नजदीक के छोड़ो, के धर्म को छोड़ो और मुसलमान बन। जवाब सुनेगा? जवाब लो। ठीक है, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दो इसका। खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। सामीन देखें, इसको मैंने कहा कि तू हवाला भेज, स्क्रीन नहीं भेजता है, अपनी किताब जाल हक से पढ़ कर नहीं स्कैन होता है यार, स्कैन बोलो। खामोश रहो, सारी गलती कर रहे हो। खामोशी तो इन्होंने सुना दे, खामोश स्कैन बोलो। इंग्लिश वर्ड बोल रहे हो तो स्कैन बोलो। स्क्रीन का स्क्रीन माने चमन होता है, स्क्रीन माने आपका। मैं खामोश था ना, मैं खामोश था ना तुम्हारे बारे में। अरे गलती बोलोगे तो मैं खामोश था तुम्हारे बारे में। हाँ बोले जवाब दे। सामीन देखें, इससे मैंने कहा कि तुम हवाला मेरे पर्सनल भेजो, तुम भी पढ़ोगे, मैं देखूंगा तुम कहां से पढ़ रहे हो। अब मेरा दावा है कि ये जो पढ़ता है, जब भी पढ़ता है जाल हक से पढ़ता है, हमारी किताब नहीं पढ़ता है। जाल हक का नंबर बताओ। मर गया, बाद में जन्म कर्म हुआ। मौका बोलने का, क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर झूठ बोलना है तो दावा किया है। सफा नंबर सिर्फ बताते जाए। खामोश तेरा सफा नंबर बताओ यार। झूठ अरे खामोश रहेगा नहीं। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ तुम बोल रहे हो, तुम हवाला नहीं दे रहे हो। तुम बोल रहे हो झूठ। में इतना दबा दूंगा यार। खामोश जवाब तो सुन। सामीन, इसने कहा कि तुम बुखारी, इमाम बुखारी को कहते हो उसने शिर्क किया है, ये किया, फला किया है, आदम के मुतालिक कहा है, बराबर, लेकिन वो हवाला नहीं दिया। अब मैं अगर हवाला नहीं दिया, खामोश है। अरे खामोश है। फटा हुआ रशीदिया में रशीद के सफा नंबर 1 जिल्द नंबर 2 पढ़ो। अरे खामोश रहा। ईमान और कुफ्र के मसाइल में तालीम खामोश रहेगा। अरे खामोश रहेगा। 62 में लिखा है। अरे खामोश रहेगा। इतना कुतुब लगताब कहते हो रशीद गंज। खामोश रहेगा। अपनी बारी में बोलना ना। खामोश रहेगा। जवाब नहीं दे रहा खबीर। खामोश खामोश। झूठ पर झूठ बोलते रहेगा। खामोश रहेगा। अपनी बात में लगाइए। अरे खामोश रहेगा। जवाब दो। सामीन देखे, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनकी किताब है, एक किताब में सफा नंबर 23 पर लिख रहा है, गर मोहम्मद ने हजरत के नाम बता लें। हाँ, हजरत आपने पर्सनल में भेज दिया, देखें। नाम बताएं यार। दीवानी मोहम्मदी। दीवानी मोहम्मदी। हाँ, अगर कहोगे घर मोतबर है, मैं साबित करूँ तुम्हारे घर से जिसका सिलसिला। मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह करते हो ना, इनकार करते हो। जवाब देने की बारी आती है। अरे खामोश। जवाब देने की बारी आई तो अरे खामोश ना। ये जवाब दो इसका कि इसके बारे में ये रशीद अहमद गंगोही को काफिर समझते हो या मुसलमान। अरे जवाब दे आदमी यार। अरे इबारत तो पढ़ने दे। अरे यार भोग नहीं बीच में क्यों? अरे इबारत तो पढ़ने दे, खुद बोल रहा है कुत्ते की तरह। बोलो। हाँ, इसमें लिखा हुआ सफा नंबर 23 पर दीवान मोहम्मदी के अंदर इसने ये मोतबर माना है इसको कि गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया,
फिर तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अगर खुद को खुदा मान लिया तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुसलमान है। आप तो बाजी कर। अच्छा बोल जवाब देता हूँ। हवाला दूं मैं? दीवाने मोहम्मदी का हवाला तुमने दिया, हवाला दूं, भेजूं? नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है, मैं दीवाने मोहम्मदी और एक हवाला दे रहा हूँ, रुको, खामोश रहो, मेरी बारी है। ये रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ या मुसलमान रहा? आप जवाब नहीं दिए। हवाला नहीं दिया है। मैं हवाला दे रहा हूँ ना, अभी नहीं, तुम मैं जो अभी दूंगा तुम्हारे पर्सनल पे, भेज रहा हूँ, रखो। अब क्या भेज दे रहा हूँ आपको। हाँ, भेजो। तब तो नहीं भेजा ना, फिर बात करता हूँ मैं। भागना मत। क्या भागना नहीं? मैं फिर बात कर रहा हूँ। भागेगा मैं निकाल करके अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तू पढ़ रहा है, जब किताब देख के पढ़ रहा है, निकालने क्या बात बोल रहा है? फौरन ही भेज दे रहा हूँ। जब तुम मुझे किताब पढ़ रहा था, किताब निकाला था ना, तो ही पढ़ रहा होगा ना। तो उसका हाफिज तो है नहीं, भी मौजूद है, निशान भी करके आपको भेज रहा हूँ। भेज दिया, तेरे पर्सनल भेजा है, देख। टोकरी तुम्हारी किताब फोन में नहीं रखता मैं, वो उसमें वायरस हो जाते हैं, गुस्ताखी और पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कहते हो तुम्हारी इमाम मानते हो। इसने दीवाने मोहम्मदी को मोतबर माना है, जलालुद्दीन का मुफ्ती है। तुम लोग मैं जवाब दूंगा, तलबा कर रहे हो तुम, मैं स्कैन भेज रहा हूँ। जलालुद्दीन का मुफ्ती है ये, मैं स्कैन भेज रहा हूँ आपको अली असगर साहब, आपके जो पर्सनल वीडियो आया है ना, उसी में भेज दे रहा हूँ अभी, है ना। तुम्हारे पर पड़ी है, भेज रहे हो ना, पहले नहीं भेज रहे थे, बोल फोन काट के भेजूंगा। क्या चीज तुम्हारे पास जब पड़ी है, स्कैन भेज बेजार कर दिया, पड़ी है, फिर भेजने के बाद बोल रहे हो। अब तक क्यों नहीं भेज रहे तुम? तुमको जवाब दूंगा अभी, मैं जवाब दूं, क्यों नहीं भेज रहे थे तुम? मैं तो ऐसे जवाब दूंगा तुम्हारी डींगे मारता रहेगा पूरी जिंदगी। अली असगर तेरे सामने है, डींगे मारता रहेगा, धज्जियां मार दूंगा। अली असगर समझे तुम, मेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। तुझे डुप्लीकेट तुझे मुफ्ती बनाया है। शेर सामने रहता है ना तो तुम जीदा हो जाते हो, कसम से बता रहे। हवाला भेज, मैंने भेजा पढ़, मैंने भेजा पढ़, भेज दे रहा हूँ, मैंने भेजा पढ़, हवाला भेज रहा हूँ, मैंने भेजा पढ़, मैंने भेजा पढ़। अब तू पढ़। अब तेरे पर गाज गिरी, तेरे घर से तेरे कुफ्र का, तौहीन रिसालत का, अब बोल रहा है मैं भेजूंगा। पहले कितना हम लोग चीख रहे थे, भाई भेजो भेजो, कितने जोर से बोल रहे थे, लेकिन तेरे कान में जो तक नहीं रुकी है ना, हैं? और अब तेरे ऊपर पड़ी, तेरे तुम्हें अल्लाह के वसल्लम तेरा बदअकीदा कुफरी अकीदा साबित किया कि नबी वसल्लम को दगाबाज कहते हो तुम लोग। तुम शर्म नहीं तुमको, हैं? हम दोनों मिलकर बोल रहे थे हवाला भेज, तब तुमने हवाला पहले मांग लिया है, फिर फोन काट के भागा है। तो हम बोल रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हो तुम, तो फोन काट के फिर दूंगा। अब जब तुम्हारा जवाब मैंने सुन लिया कि अब तुम्हारे अपने घर में तुमको बेईमान साबित किया जा रहा है, तुम जवाब दे नहीं पा रहे हो, तुम्हारे घर पे गए तो तुम्हारे घर से जो मैंने पेश किया, तुमने मोतबर माना है दीवानी मोहम्मदी को, उसी से मैंने साबित किया है कि लिखा है गर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को खुदा कह सकते हैं? कह रहा है अगर मान लिया नबी वसल्लम खुद को खुदा, तो समझ लो अल्लाह के नबी मुसलमान हैं और ना नबी वसल्लम दगाबाज है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तुम्हारा अकीदा ये मर जाएगा, कहीं भी नहीं सकता कि अब तो ये कहीं भी नहीं सकता कि दीवाने मोहम्मद गैर मोतबर है, क्योंकि इसे माना कि मैं मानता हूं उसको। सुनने वालों जो अपने आप को सुन्नी कहते हो, तुम्हारा यही इश्क है नबी अलैहिस्सलाम से कि नबी वसल्लम को तुम दगाबाज कहो, बर्राबाजी करना छोड़ दो। ये वो मुफ्ती है जिसको जलालुद्दीन ने कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए मुफ्ती बनाकर लेकर आया था और अली खान के खिलाफ फतवा जो दिया था। हाँ, अली खान के इसको जलालुद्दीन ने कुछ देर के लिए मुफ्ती बनाया था कि मेरी इज्जत बचा लो। ये अली खान मुझे काफिर कह रहा है। कौन कह रहा है? जलालुद्दीन कह रहा था, काफिर, मुनाफिक, दगाबाज, चंदाचोर कह रहा था वो, ठीक है। तो अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, जिल्लत को छुपाने के लिए वो मुफ्ती बनाकर लाया था। और वो मुफ्ती जो उसके घर को, इस किताब को मोतबर मान लिया है, जिस किताब में नबी अलैहि को दगाबाज कहा जा रहा है। बताओ, भाग गया फोन काट के ना वो? हाँ, भाग गया फोन काट के। खबीर बताओ, हजरत बताओ, जब आपसे उसने हवाला स्कैन मांग लिया उसने, तो आपने दे दिया। अब जब हम उसको कह रहे हैं कि तुम तो आज तक कभी उसने दौरान गुफ्तगू हवाला दिया ही नहीं है, हम दिए पर्सनल। मैंने कहा पढ़, हमने तो वक्त दिया था भाई, इसे वक्त दिया हमने। हाँ, इसने कहा हमसे हवाला लेने के बाद हमने हवाला भेज दिया कि ठीक है मुझे वक्त दो, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसने ये कहा
سنیں جلال الدین قذاب کہتا ہے کہ علی اصغر کبھی دلیل دیتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. میں اس کے پرسنل بھیجا، جلال الدین کا مفتی ہے، جلال الدین کا بڑا مفتی، اس کو میں نے بولا کہ تیرے پرسنل حوالہ بھیجا ہوں، دیکھ پڑھ تو دیکھ، کم سے کم تیرے جلال الدین کی زبان تو بند ہو جاوے، اس کا منہ تو کالا ہو کہ ایسی دلیل دیتا کہ نہیں دیتا علی اصغر. اتنی بڑی بات کہہ دی حضرت کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو اللہ کے نبی مسلمان ہیں، دغا باز نہیں. اور نہ نبی دغا باز ہے، استغفر اللہ، خود کو خدا نہیں کہے تو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ جواب نہیں اس کے پاس، خالی چیخنے کا ہے، بھوکنے کا ہے، کچھ نہیں. چلو بھاگ گیا، اس کا بھاگنا شکست. بالکل سنتا نہیں ہے، بالکل سنتا نہیں، مجھے پتا ہے. میں نے کہا نا آپ کو، پہلے حوالہ لے لے گا پھر بھگ جائے گا. وہ ہر مرتبہ ایسے کیا اس نے، پہلے بولتا ہے کہ موضوع کیا بتاؤ، جب کوئی موضوع بتاتا ہے بھاگ جاتا ہے، بولے کہ میں 10 منٹ بات کروں گا، مصروف ہوں، ناشتہ کرتا ہوں. پھر آتا ہے وہ اپنے جعل حق لے کے بیٹھ جاتا ہے. وہ جعل حق، اس کی کوئی کتاب ایسی ہوتی ہے جو ہمارے اس میں لکھا ہے خلاف، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہی مطالعہ کرتا ہے. اگر وہ کتاب نہ ہو تو آج تک وہ اسکین کیوں نہیں بھیجتا ہے پرسنل پہ؟ بالکل. اور بول رہا ہے کہ میں کتاب کھولنا پڑے گا. جب کھولا نہیں تو کیسے بول رہا تھا، کہاں سے بول رہا تھا تو؟ اور ابھی تک ہمارے پرسنل پہ کوئی حوالہ نہیں آیا، ابھی تک کہہ کے گیا نا حوالہ دوں گا، نہیں دے گا وہ. ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک. مر جائے گا. اگر چاہتا فوٹو کھینچنا اتنی دیر میں فوٹو کھینچ بھی جاتا. میرے کو بھی نہیں بھیجا اس نے. دو کتاب بھیجی اس کو، تو وہ اس نے پہنچ بھی، دیکھے میں آپ کو پرسنل اسکرین شاٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے پرسنل پہ یہ پھر اس کے پاس. لیکن جب دیکھا کہ میں نے کتاب بھیجی پہنچ گئی ہے حوالہ، تو اس کا حوالہ کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ دیکھیں ڈبل نشان، دیکھیں اس کو، دیکھ رہا ہوں، ہے نا ڈبل نشان. یہ دیکھیں میں آپ کے اس میں سے بھیجا ہوں، میں اب اس میں سے بھیج رہا ہوں. دیوان محمدی اور ایک جعل حق سے میں نے بھیجا ہے. جعل حق میں کیا تھا نا، بار بار تمہاری کتاب میں لکھا ہے بظاہر کہہ رہا تھا، بظاہر تم لوگ ایسا ہو، بظاہر تم کرتے ہو، بظاہر کا لفظ بول رہا تھا نا وہ. کیا بول رہا تھا؟ بظاہر کا لفظ بول کے تو خود اس نے کی. دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، نشان لگایا، دیکھیں جعل حق صفحہ نمبر 169. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ ہوا کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم یا مثل نورہ کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خدا بندی کے خلاف معلوم ہوتی ہیں. کیا ہوا اگر بظاہر لفظ اگر لگا ہوا ہے اس سے تم گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے، کافر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے. تمہارے یہاں لکھا ہے یہ 2 آیات قرآن کی جو ہے بظاہر شان خداوندی کے خلاف ہے، تو پھر قرآن کہاں گیا؟ سچائیت، اس کی سچائی، حقانیت کہاں گئی؟ قرآن کی حقانیت کہاں گئی؟ قرآن پھر باطل کہہ رہے ہیں، پوری حقانیت ختم کر دی بظاہر کا لفظ بول کے انہوں نے. جو ہماری دوسری عبارت پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ امتی بظاہر نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے. بظاہر اگر اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا تو اس پر کیوں نہیں لگے گا؟ بظاہر شان خداوندی کے خلاف ہے قرآن کی آیت. قرآن کی ایک آیت کو جھٹلانا پورے قرآن کو جھٹلانا ہے. بے شک اس لیے غائب ہے. اور مفتی اس کا بھاگیہ پر حوالہ نہیں بھیجا، اس نے نہیں بھیجتا ہے، بھیجے گا نہیں، وہ تو جعل حق پڑھتا ہے نا. جعل حق پڑھ کے بھیجتا ہے. آپ کبھی بھی آپ اعتراض کر لو، وہ کبھی آپ کو اسکرین نہیں بھیجے گا. جعل حق اس کی کوئی کتاب پڑھ کر کے دیکھا جہاں پہ ہمارا اعتراض کیا گیا ہے، جواب دیا ہے، اسی کو پڑھ کر بتایا گئے. اور اس کے لوگ سمجھتے ہیں مفتی ہے یہ. چلو مفتی مصنوعی مفتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بنایا ہوا مفتی، جس کو جلال الدین نے مفتی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے بنایا تم. السلام. اس نے کیا بولا حضرت؟ کیا بولا اس نے کہ تمہارے گھر سے اہل سنت کا ہونا ثابت ہے. حوالہ کیا دیا؟ مجلہ صفدر. دیکھیں وہ جہاں نشان لگایا اس کے اوپر سے پڑھیں آپ، جہاں میں نے بلو نشان لگایا. لفظ اہل سنت والجماعت کا اطلاق حضرات
अशाइरा व मातुरीदिया पर होता है। अहमद रजा खान बरेलवी और उनकी जमात का इन दो जमातों से कोई ताल्लुक नहीं। अहमद रजा खान जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब कुल्ली मानते हैं, या यूं कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इख्तियारात सुपुर्द कर दिए गए। हो गए ना, क्या लिया ऊपर, क्या बोला कि अहमद रजा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कहा ना? हाँ बिल्कुल। और ऊपर की 4 ये लाइन छोड़ करके नीचे की 2 लाइन पर किस तरह धोखा देने की कोशिश किया उसने, इसलिए वो भेजता नहीं था। उसको पता है कि हवाला अगर भेज देंगे उसकी खैर नहीं है, उसकी हवाला, उसके इरसाल करदा हवाले से ही उसका मुजद्दिद जो है कुफ्र के घाट उतर जाएगा। उसे भेज दूं मैं, ये देख लिया, उसे भेज दूं मैं, इसको क्या फायदा हो, माने थोड़ी मानेगा वो। या फिर उसको बोले फोन करके, तूने जो भेजा है, तूने जो निशान लगाया है, या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तक़रबू सलाह, इतना ही कहा है। आगे क्या है वो तूने पढ़ा नहीं, छोड़ दिया तू। ऊपर से मुकम्मल खुलासा किया, तेरे यहाँ बमबारी की है, धज्जियां उड़ाई है तेरी, और तू बोल रहा है हमारे यहाँ से ये साबित है, दजल देने फिरत देने की कोशिश कर रहा है। कितना बड़ा कमीना है, देखो। यानी वो क्या कह रहा था कि तुम्हारे घर से हमारा अहले सुन्नत होना साबित है। हाँ, और हवाला दे रहा था मुजल्ले सफदर से। हाँ, अच्छा, क्या पढ़ा था उसने शुरू में हवाला पे जब पढ़ा था? उसके नीचे निशान लगा, वहां से पढ़ रहा था वो। नीचे से निशान लगा, कहाँ से पढ़ा था? ठीक है। और एक मौलाना मंजूर नुमानी साहब का हवाला दिया उसने। एक मिनट, कहाँ से पढ़ा था? जहाँ निशान लगा वहीं पढ़ा उसने, जहाँ से मैंने अभी सुना है लफ्ज़ अहले सुन्नत वल जमात का इतलाक। हाँ, वहां से पढ़ा था। हाँ, और हवाला दिया उसने, और एक हवाला दिया, वो देखें आप वहां क्या लिखा हुआ, क्या बोला, देखें ऊपर क्या लिखा है, मजालिस हजरत नौमानी, है ना, मौलाना मंजूर नौमानी का हवाला देके कह रहा था वो। और क्या लिखा हुआ है निशान के अंदर, पढ़े आप क्या लिखा हुआ है। फरमाया हकीकी अहले सुन्नत हम हैं, अपने आप को अहले सुन्नत कहा करो, बरेलवी तो अहले बिदअत हैं, उनको अहले सुन्नत कहना ही गुनाह है, लिखा है ना। मौलाना मंजूर नौमानी ने भी धुतकार दिया। दोनों हवाला उसने पेश किया है, दोनों हवाले में वो दोनों हवाला उसके लिए गले की हड्डी बन गई। और ये हवाला पेश किया था मजल्ला सफदर से उसने। हाँ, और मौलाना का नाम लिया। तो उसने पढ़ना कहाँ से शुरू किया था, ये तो बताओ मुझे। वो पढ़ ही नहीं रहा था, वो कहीं और से पढ़ रहा था वो। हाँ, मजल्ला सफदर में तो ये बात है ना। वहाँ हवाला अपनी किताब का दिया है, लेकिन पढ़ कहीं और से रहा था वो। ठीक है, मैं फोन लगा रहा हूँ साले को। इतना बड़ा दज्जाल कज़्ज़ाब है, इसलिए भेजता नहीं है। जब अभी भेजा है, मेरा हवाला उसके पास पहुंच गया, वो क्यों नहीं भेज सकता है, पता है उसको। फोन काटो यार, तुम मैं कर रहा हूँ इसका।